students, welcome to Law Prep Tutorials and I'm your English mentor Vandana and I'm back again with figure of speech part 10. 1 2 3 4 5 6 कर करके हमने 9 पार्ट ऑलरेडी शूट कर लिए हैं. I hope you must have seen all the 9 parts and this is figure of speech part 10 in which we'll be doing alliteration, anaphora, epiphora, panellipsis and epizeuxis. नाम सुने सारे? नहीं सुने? आई एम श्योर फर्स्ट 3 सुने होंगे, बाकी जो 2 है ना ये आज पता चल जाएगा क्या है. एंड बिफोर आई प्रोसीड विद माय वीडियो आई वांट टू गिव यू अ बिग न्यूज एंड यस दैट न्यूज इज this GK marathon. Yes students, we are coming up with a power packed GK marathon. It's going to be a 6-hour GK marathon on 31st of August 5 PM to 11 PM और जितने भी बच्चे इसको देखने आएंगे something big is waiting for them in this session. अब वो क्या big है ये आपको वहीं पे आके पता चलेगा. And what's important in this is that first of all this is going to be taken by your favorite mentors. Okay, so जो भी आपके सारे favorite GK teachers हैं वही सब मिलके ये आपका GK session लेने वाले हैं. And this is going to cover 50 most important topics of GK. तो जितने भी बच्चों के GK में problems आती थी ना, मैम बैकलॉग बचा है, मैम हो नहीं रहा, there is that and all, everything, this is a one-stop solution for everything. So don't miss out this session and something big, a big surprise is waiting for you during this session. मिलते हैं सेशन में. अभी फिलहाल के लिए पढ़ लें फिगर ऑफ स्पीच. चलो वापस आ जाओ फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 10 पे. All right, alliteration, anaphora, epiphora, panellipsis and epizeuxis. ये नीचे के 2 नाम तो ऐसे लग रहे हैं ना शायद कोई दवाइयों के नाम है, but no, these are also figure of speech. और ये कौन सी figure of speech है इसको एक एक करके देखते हैं. बेटा वर्ड जरूर थोड़े से recondite types लग रहे होंगे, but these are actually very easy figure of speech. एक बार समझ लोगे ना तो इसको भूलोगे नहीं. सबसे पहले बात करते हैं alliteration की. Alliteration is one of the easiest figure of speech. बहुत बार मॉक में जब भी figure of speech का rhetoric poetic device का क्वेश्चन आता है आपने देखा होगा कि ऑप्शन में alliteration कई बार आता है. Alliteration सबसे इजी होता है आइडेंटिफाई करना. जितने भी बचपन में आपने टंग ट्विस्टर्स बोले होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं alliteration के. Seashell on the seashore, white water whales, Nick needs new notebooks, Fred feeds fried frogs on Friday. ये जितनी भी चीजें अभी मैंने बोली ये सारे alliteration है. yes, alliteration वो figure of speech होता है जिसमें एक सेंटेंस के मैक्सिमम वर्ड्स वी कैन बार दी prepositions और आर्टिकल्स. ओके, इनके अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स हैं दे ऑल स्टार्ट विद द सेम लेटर. कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं alliteration. ठीक है. So alliteration is a figure of speech where the same consonant sound, okay, consonant, हम vowels की बात नहीं कर रहे हैं, हम consonant की बात कर रहे हैं, where the same consonant sound is repeated at the beginning of nearby or closely connected words. इसको बोलते हैं हम alliteration. और alliteration क्यों यूज करते हैं? It is often used in poetry, prose, slogan and speeches to create rhythm, emphasis and musicality. ठीक है, तो ये poetry वगैरह में यूज होते हैं ताकि rhythm बन सके. So alliteration सबसे इजी होते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, फटाफट देख लो. seashells on the seashore, all s, सारे s से शुरू हो रहे हैं तो alliteration हो गया. Peter, Piper, pegged a peck of pickled peppers, all peas, alliteration. The wild wind whipped the wandering waves, www. बेटा जैसे मैंने बोला ना आर्टिकल्स हम छोड़ सकते हैं, prepositions हम छोड़ सकते हैं, बट मोस्टली बाकी जो जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड सेम कॉन्सोनेंट से शुरू होने चाहिए. Cool cats calmly crawled across the courtyard. See. So this is again your alliteration. Big brown bears bellowed bravely, all B. Okay. Lazy lion lounged in the lagoon, LLL. Whispering winds wandered wildly, WWW. Dark and dairy December days, all DDD. Friendly frogs frolic freely, all FFF. ये सारे होते हैं alliterations. ये बहुत easy है इनको identify करना. It's easiest one to identify जहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं. आज एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में एक अपना खुद का क्रिएट किया हुआ एलिटरेशन बना के लिखना. ठीक है, दिस शुड बी फ्रेश, नो चैट जीपीटी, नो गूगल. ट्राई टू मेक योर ओन alliteration and believe me students are able to make amazing and wonderful alliterations. I do this in the offline classes and बच्चे खुद का fresh, innovative, amazing alliteration create कर सकते हैं within just 2 to 3 minutes. So try that. ठीक है, जितने भी मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना कोशिश करो एक अच्छा सा alliteration बना के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. I would definitely see that. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. alliteration आई होप सबको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट आ जाओ anaphora पे. ठीक है, anaphora क्या होता है? एक सेंटेंस में
क्लॉजेज होते हैं। ओके एक सेंटेंस होता है, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसको हम जनरली कॉमा से, सेमीकोलन से बाइफरकेट करते हैं, दे आर कॉल्ड क्लॉजेज। एनाफोरा का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, वेयर इज द पेन, ओके लेट मी टेल यू। चलो, सो एनाफोरा का मतलब होता है, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड और फ्रेज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज। अगर एक सेंटेंस में आपके 3 क्लॉजेज हैं मान लो, तो वो हर क्लॉज सेम वर्ड से स्टार्ट होगा, दैट बिकम्स योर एनाफोरा। ओके सो इफ यू हैव 3 क्लॉजेज इन वन सेंटेंस, ऑल द क्लॉज विल स्टार्ट विद द सेम वर्ड, वो हो जाएगा एनाफोरा। कैसे क्या होता है एनाफोरा, लेट मी शो यू दैट एज वेल। ठीक है, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, the pen, let me just see. All right, okay, so we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields. So यहाँ पे देखो एक क्लॉज होगा हमारा we shall fight on the beaches तक, दूसरा है on the landing grounds तक, थर्ड है till the fields तक। अभी तीनों क्लॉजेज हैं, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास, दिख रहा है सबको कॉमास। सो हर नया क्लॉज शुरू जो हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग विद वी। कैन यू सी, व्हेन आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड, ये भी आना हो रहा है ना। सो आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड, मैंने इसका एग्जांपल दिया था कहां पे, क्लाइमैक्स में। दिस इज क्लाइमैक्स आल्सो एंड anaphora as well. So we shall fight for the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the field. So all the clauses are starting with WEV. Hence this is anaphora. We will not give in, we will not give up, we will not surrender. Again all the clauses are starting with we. Hence this is anaphora. Okay, this nation will rise, this nation will fight, this nation will endure. All the clauses are starting with this. Mad world, mad king, mad composition. All the clauses are starting with mad. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. Again all the clauses are starting with it. Okay, when we win together, when we lose together. Again both the clauses are starting with when. Every step counts, every moment matters, every choice shapes us. This city is mine, this city is my pride, this city is my future. So I hope anaphora सबको समझ आ गया होगा. It's a very simple literary device. anaphora में जितने भी clauses हैं एक sentence में, वो सारे clause same word से शुरू होते हैं, ठीक है? So it's easy to identify if this is one clause, this is second clause, this is third clause. So starting word जो है, that has to be same. Okay, the starting word has to be same in anaphora. अब आ जाओ एपीफोरा पे। जैसे यहाँ स्टार्टिंग वर्ड सेम है, उसी तरह से एपीफोरा में क्या होगा, एपीफोरा में आपका एंडिंग वर्ड सेम होगा। एपीफोरा में द एंडिंग वर्ड वुड बी सेम। एपीफोरा इज अ फिगर स्पीच वेयर अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ सक्सेसिव क्लॉज, सेंटेंस और लाइन। एनाफोरा स्टार्टिंग, एपीफोरा एंडिंग। ठीक है, एपी से याद रख सकते हो, ई फॉर एंड, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ई मीन्स एंड, यानी हर क्लॉज का लास्ट वर्ड सेम होगा एपीफोरा में। ठीक है, देखते हैं कैसे। लेट्स सी हियर। ओके, सो दिस इज योर सेंटेंस विथ 3 क्लॉजेस। एनाफोरा में फर्स्ट था, एपीफोरा में लास्ट होगा। क्लियर? एनाफोरा में फर्स्ट था, एपीफोरा में लास्ट होगा। When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, and I thought as a child. All the clauses are ending with child. Isn't it interesting? है ना? एनाफोरा में सारे चाइल्ड से शुरू होते, यहाँ पे सारे चाइल्ड से खत्म होते। ओके, when we, where now, who now, when now. All the clauses are ending with now. That government of the people, by the people, for the people. All the clauses are ending with people. See no evil, hear no evil, speak no evil. All the clauses are ending with evil. I want pizza, he wants pizza, we all want pizza. By the way, do you know that the proper pronunciation of this word is not pizza? It is pizza. कितने लोग इसको आज पता चला है कि उसको पिज्जा बोलते हैं? It's not pizza, it's pizza.
यस इट इज पिज्जा। चलो एक और चीज बोल रही हूँ, अगर पता हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जब आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन पिज्जा तो बीच में जब बड़ा वाला स्पेशली जब पिज्जा मंगाते हैं ना, बीच में एक छोटी सी प्लास्टिक की टेबल होती है ना, देखा है कभी? एक छोटी सी क्यूट सी प्लास्टिक की टेबल होती है जिसका पर्पस ये होता है कि जो पिज्जा का जो कवर है बॉक्स का वो आपका पिज्जा को खराब ना करे। उसको इन जनरल हम पिज्जा सेवर बोलते हैं, नॉट पिज्जा सेवर, पिज्जा सेवर, बट उसका एक टेक्निकल एक नाम होता है। अगर आपको उसका नाम पता है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है? सो व्हाट डू यू कॉल दैट स्मॉल क्यूट टेबल दैट कम्स इन द मिडल ऑफ पिज्जा पिज्जा व्हेन यू ऑर्डर इट ऑनलाइन? इफ यू नो इट टेल मी, ओके? चलो गोइंग बैक टू एपिफोरा, she is learning for success, working for success, and living for success. So see, these are so beautiful examples where we can actually see how beautifully the words has been arranged to give the effect of epiphora. एनाफोरा जब हर क्लॉज का स्टार्टिंग वर्ड सेम होता है, एपिफोरा जब हर क्लॉज का एंडिंग वर्ड सेम होता है। That's anaphora and epiphora. आज हम जितने भी फिगर ऑफ स्पीच कर रहे हैं ना, alliteration को छोड़ के, they are all related to the placement of words. Anaphora, epiphora आपने सुना होगा, बट अब जो आ रहे हैं ना sort of मेडिसिन नाम्स वाले हैं ना, what was next? Apocalypsis. What is this? Apocalypsis. Apocalypsis क्या होता है इसको देखते हैं। This is also very interesting though. I'm sure नाम पहली बार सुना होगा, but ये concept is not new, पता होगा। Apocalypsis is a figure of speech in which a word or a phrase is repeated at the beginning and the end of the same clause. मतलब समझ आया? देखो अब ध्यान से देखो, ये 3 क्लॉज है। एनाफोरा में क्या हो रहा था? स्टार्टिंग वाज सेम। एपिफोरा में क्या हो रहा था? एंडिंग वाज सेम, राइट? एपोकैलिप्सिस में क्या हो रहा है? is repeated at the beginning and at the end of the same clause. यानी इस क्लॉज का ये वर्ड सेम होगा, इस क्लॉज का ये वर्ड सेम होगा, अलग अलग भी हो सकते हैं, और इस क्लॉज का ये वाले 2 वर्ड सेम होंगे। समझ आया? हाउ वी गो विद द एपोकैलिप्सिस? सो दिस वाज एनाफोरा, दिस इज एपिफोरा, एपोकैलिप्सिस। द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेम क्लॉज इज सेम, द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकंड क्लॉज इज सेम, the first and the last word of the third clause is again same. Let us see how. आ जाओ। All right. Beloved is mine, she is beloved. So this is starting and ending with the same word. Common sense is not so common, starting and ending with the same word. Nothing can be created out of nothing, starting and ending with the same word. Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind. Okay, starting and ending with the same word. Happiness is the key to life, life is the key to happiness. Similarly, the future belongs to those who prepare for the future. समझ आया? So the first and the last clause of the first and the last word of the same clause or sentence is same. That is epocalypsis. Anaphora first, epiphora last. Epocalypsis first and last. So anaphora और epiphora का combination है epocalypsis. समझ आया? Anaphora first, epiphora last, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम, ये हो जाएगा एपोकैलिप्सिस। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एपिज्यूक्सिस। एपिज्यूक्सिस में क्या होता है? लेट मी पिक्टोरियली फर्स्ट ट्राई टू रिप्रेजेंट इट, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक सेंटेंस है, सॉरी ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है, ये तीसरा क्लॉज है। फर्स्ट सेंटेंस जहां पे खत्म होगा ये वाला वर्ड, और सेकेंड क्लॉज जहां पे शुरू होगा ये वाला वर्ड सेम होगा। समझ आया? फिर ये वाला क्लॉज जहां पे खत्म होगा और ये वाला क्लॉज जहां पे शुरू होगा, ये दोनों वर्ड सेम होंगे। Epizuxis is different. We can say that this is instant repetition. This is instant repetition. This is definitely different from अभी तक जो हमने पढ़े। यहाँ पे the last letter of first clause and the first letter of next clause is same.
अगेन द लास्ट लेटर ऑफ दिस क्लॉज एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ नेक्स्ट क्लॉज इज सेम. ये होता है एपिज़्यूक्सिस. सो दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड ऑफ फ्रेज इज रिपीटेड इन द इमीडिएट सक्सेशन. इमीडिएट सक्सेशन का मतलब क्या है? बैक टू बैक विद नो वर्ड्स इन बिटवीन. ठीक है, बैक टू बैक इसमें रेपिटेशन होता है, कोई बीच में वर्ड नहीं आता है, फॉर एम्फेसिस, इंटेंसिटी और ड्रामेटिक इफेक्ट. इसके एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज और अच्छे से समझ आ जाए. लेट मी एक्सप्लेन यू द एग्जांपल्स. सी, अब यहाँ पे तो क्लॉजेस जो है वो बहुत ही छोटे छोटे सिंगल वर्ड्स के हैं, तो जब रेपिटेशन होता है सो दैट इज एपिज़्यूक्सिस. एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, सिंपल. ओके, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, सिंपल. गॉन 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 फॉरएवर. ओके, yes yes yes, that's exactly it. I hope you can see. No no no, that's not what I meant. Oh dark. अब यहां देखो, oh dark, ये पहला क्लॉज है, इसमें दो वर्ड्स हैं, oh dark. सेकंड क्लॉज किससे शुरू हुआ? यहाँ के लास्ट वर्ड से dark. थर्ड क्लॉज किससे शुरू होगा? इसी वर्ड से, बिकॉज यहाँ पे एक है तो फर्स्ट क्लास का कोई चक्कर ही नहीं है. ठीक है, ये यहां से शुरू हो गया. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमें इसके आगे एक और क्लॉज ऐड करना है. इट विल स्टार्ट विद व्हाट? इट विल स्टार्ट विद दिस वर्ड. Think of something and give me something in the comment section कि हम क्या इसके आगे लिख सकते हैं. Oh dark, dark, dark amid the blaze of noon, and next clause will start with noon. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट क्लॉज किससे शुरू होगा? बताओ मेरे को. It will start with meant. Okay, this clause will start with it. This clause will start with forever. Getting it? आप समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है. Faster, faster, faster. The train is coming. Okay? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लॉज किससे शुरू हो गया? देखो, फास्टर के बाद नेक्स्ट फास्टर, यहाँ पे फिर से फास्टर. अब यहाँ कमिंग है तो नेक्स्ट किससे शुरू हो गया? कमिंग. कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं? फास्टर फास्टर फास्टर, द ट्रेन इज कमिंग, कमिंग एट हाई स्पीड. देखो, बन गया हमारा एपिज़्यूक्सिस. सिमिलरली इसको आप ना, दिस इज योर होमवर्क इन द सेंस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसको कंप्लीट करके. ये देखते हैं, अलोन, सेकंड भी अलोन से शुरू, सेकंड में है अलोन ऑल. ओके, अब ये खत्म हुआ ऑल से तो नेक्स्ट किससे शुरू हो गया? ऑल से. ये खत्म हुआ अलोन से तो नेक्स्ट किससे शुरू हुआ? अलोन से. ये खत्म हो रहा है वाइड से तो नेक्स्ट किससे शुरू होगा? वाइड से. तो दिस इज बेसिकली, दोबारा से बता रही हूं, दिस एंड दिस इज सेम, दिस एंड दिस इज सेम, this and this is same. समझ आया? So how the words are arranged or repeated in sentences, with that we can have several figure of speech. आज हमने उनमें से 4 करी हैं. ठीक है, जो आज हमने उनमें से 4 करी हैं वो कौन कौन सी हैं? Quickly let us see. You can take a screenshot of this slide. This is important. Anaphora is repetition at the beginning of clause. Epiphora is repetition at the end of the clause. Epanellipsis is repetition at beginning and end of the same clause. And epiζeuxis is immediate repetition with no breaks. That means the first one, the last letter of first clause and the first letter of next clause. That is epiζeuxis. ठीक है? I hope ये सारे आप सबको समझ आ गए हैं. अगर समझ आ गए हैं तो एकदम मुझे कमेंट सेक्शन, अच्छा ये जितनी भी वीडियोस मैं बना रही हूँ बेटा, ये things are going inside and if these are useful and आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैम ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा था and this was a good session और हमें अच्छे से समझ आ गया, so एक बार ना मुझे थोड़ा सा feedback जरूर दे दिया करो कि yes ma'am. Okay, and if you want me to make videos on any other topic, okay, we still have 3 months left, so if you want me to make videos on any other topic, do write that as well and I'll definitely make video on that topic as well. ठीक है, figure of speech के 10 parts हो गए हैं, most probably 2 या 3 parts और आएंगे and then this entire series of figure of speech would come to an end. फिर कोई और series चालू कर देंगे, है ना? तो लेकिन उससे पहले तो figure of speech को अच्छे से समझ लेना, सब अच्छे से कर लेना and the words might look little difficult or rocket science type, but actually things तो बहुत easy है ना? वो word इतने बड़े बड़े जरूर दिखे लेकिन actually जो उसमें बताया जा रहा है that's pretty easy, that's not at all tough. Alright, चलो, so with this let me wind up this video and say you goodbye till we meet in the next video. Figure of speech part 11 में मिलेंगे कुछ और interesting figure of speech के साथ. ठीक है, till then bye bye, have a nice day.